So hello everyone, finally we are back again, and today what we are going to do is session 5. We're done with session 1, 2, 3, 4. 4 sessions are done and I'm sure you've been enjoying them, right? Yeah, is it that way कि मैम ऐसा सिर्फ आपको लग रहा है या ऐसा हमको लग रहा है? Okay, so there are people joining in and cameras has yet to be switched on, so we'll wait for 2 minutes. Actually तो 4:30 हो गया है. So your camera should be on now, and if your cameras are not getting on तो नहीं चलेगा. चलो good. Okay, now that all of you are here, let's talk about what chapter are we doing today. As you know, as per the schedule, we are supposed to do compromise, arrangement and merger today. Okay, this is a procedural chapter. Okay, and procedures में if you go for MCQs, so they'll be more repetitive. Okay, so procedures में you'll not have too many MCQs क्योंकि वो बहुत ज़्यादा repetition हो जाता है. तो procedure से नहीं पूछते वो लोग. They'll ask you something very basic that it's like you know it, but more of things will be ये कहाँ पढ़ा है but I know it. It's you not get that surety that you're right or wrong because बस मैंने कहीं पढ़ा नहीं है but ठीक है I know it, वैसे वाला चल रहा है. Is this okay? ठीक है. So you would come across certain questions that you'll feel like मैम ये तो कहीं नहीं पढ़ा. Rather there'd be some that I will tell you अरे ये बुक में था तुमने पढ़ा नहीं. Is this okay? So it's going to be fun because compromise, arrangement, merger एक ऐसा चैप्टर है जिसका I always recommend my students to study it and go. Why study it and go is because procedural chapter है. If you forget sections, if you forget the content of it, सब कुछ भूलोगे चलेगा. Procedures में क्या है, एक mnemonic याद रखो, उससे पूरा procedure याद रखो, you get full marks. Is this okay? ठीक है. So now moving ahead and talking about our first session, like our first question of the session. So we are on session 5, which is compromise, arrangement, merger. And number of questions that we're going to have is 11. Is it okay? पढ़ा है ना तुमने आज? रिवाइज किया ना? हाँ मतलब ये वापस वही चालू हो जाता तुम्हारा. Let's see, we feel that we've revised. बाकी तो भी पता चलेगा ना हमको. Okay, so now if you're testing yourselves, let us try solving these. These are very simple. Except for the first question. I love that first question, but other than that, everything is quite simple. Okay, so can we start? Ready? Everybody ready? Ready. चलो, everybody is ready. ऐसे वाला ready हो जाओ कि आप एक जगह बैठे हो, है ना? Because ये वाला ready मेरे को doubtful लग रहा है जिसमें you're walking also. हाँ, अब ठीक है. So now that everybody is ready and almost all the cameras are on, I'll just give a try asking people to put their cameras on. तो जिनके नहीं हैं उनके हो जाएं, because you know ना, I told you तुम्हें देखने के लिए तो हम Zoom कॉल कर रहे हैं. YouTube पे only you get to see me and the videos यार. I don't get to see you, so I need to see you. For that you have to put your cameras on. Okay, so here we start our session 5 of compromise, arrangement, merger, MCQs. And here is your first question. So everybody please mute yourselves. Camera चालू रखना है, mic नहीं. ठीक है? चलो, let's start. So the first question, आराम से पढ़ना, you're going to like it. A Limited was amalgamated into AB Limited. AB Limited had held 100% shares in AC Limited. Both AB Limited and AC Limited held 10,000 shares in A Limited. Without scribbling तुम्हारा इसका आंसर नहीं आना. Okay, so be very sure तुम ध्यान से समझ रहे हो. Before the amalgamation took place, A Limited had 1 lakh shares issued in total before amalgamation, and 70,000 therein were held by B Limited, who also later became the shareholder in AB Limited under amalgamation. But the shareholders apart from B Limited and excluding AB Limited and AC Limited holding 10,000 shares did not become shareholders in the new AB Limited
assuming all other conditions for amalgamation in nature of merger are fulfilled, would this be? Here are your options. Amalgamation in nature of merger, amalgamation in nature of purchase, both of these, none of these. You'll have to scribble a bit. पहले scribble कर लो, समझ लो कौन कहाँ किससे कितने shares amalgamate हो रहा है, and then give me the answer. I'm sure you'll be making something like इसका इसमें इतना holding, उसका उसमें इतना holding, उसका उसमें इतना holding. There's so much of cross holdings over here that you really need to understand them before you answer. I told you in the start only. First question I really liked it. बाकी सब बहुत सिंपल है. ये भी सिंपल है, बट अगर पढ़ा नहीं है तो सब चीज़ डिफिकल्ट है. Okay, so the answers have started coming now. Okay, I can see answer as A. I can see answer as B. A. Come on, all of you know the rules, right? You have to have 4 sheets or pieces of paper जिस पे आपने A B C D लिखा हुआ and you have to show me on the camera. Only then it is working. A B A B A B. कोई भी none of these and all of these वाला नहीं है. Okay, A B B A. Okay, B. Okay. Now that A and B are the only answers coming, first of all, you have to know, do you think there is a section to this? If I had to ask you, is there a section to this? तो तुम मेरे को obviously बोलते मैम amalgamation का section. Amalgamation का section, you can put it here. Like मैंने भी section number में amalgamation का section लिखा है, but I want you to know this. This is not a part of any section because this chapter के सारे sections are procedures. ये introduction का part है. Introduction to any chapter, जब हम introduction देते हैं तब we explain this कि what is amalgamation in nature of merger and what is amalgamation in nature of purchase. Okay, now that you've given all the answers first, let me tell you what is the correct answer. If you know, amalgamation in nature of merger के conditions दिए हुए हैं. If you satisfy all of those conditions जो merger के दिए हैं, only then it is amalgamation in nature of merger. अगर उनमें से एक भी नहीं satisfy हुई तो it will become amalgamation in nature of purchase. So while answering this, you should know all the conditions and you should obviously अगर तुमने वो पढ़े हैं conditions तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा एक condition के ऊपर सब बेस था. Okay, and वो condition satisfy नहीं होती, because of which this cannot be amalgamation in nature of merger. This has to be amalgamation in nature of purchase. So the answer is B. Now if you're thinking how, देखो कुछ लोग ऐसे था हमको मालूम ही नहीं, ये ऐसा कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं, सॉरी आई एम नॉट हियर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम अगले क्वेश्चन से खेलेंगे. मतलब वो फर्स्ट बॉल ट्रायल बॉल होती है ना, पब्लिक ने इसको ट्रायल बॉल में ले लिया, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में. ओके, सो ऑल दोज ऑफ यू हु न्यू नथिंग अबाउट इट, तुमको तो अभी पता चलेगा. बट दोज ऑफ यू हु वर वेरी श्योर कि मैम आंसर ए होना चाहिए था, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. एंड दोज जिनका तुक्का लगा है बी पे, यू शुड ऑल्सो नो कि वो कैसे था.
ओके, सो जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट दिस इज. मेरी बात ध्यान से, ये एक्चुअली कैसे होता है ना, इंट्रोडक्शन होता है. इन एनी क्लास नॉर्मली आई एम यूज टू गिविंग दिस एज एन इंट्रोडक्शन. मतलब इस चैप्टर का जब इंट्रो चल रहा होता है तभी ये सब डिस्कस हो जाता है. दिस विल हार्डली बी ऑन द स्क्रीन, ऑन द बोर्ड, एनीथिंग, क्योंकि ऐसे ही समझ में आ जाता है. बट करंटली इट हैज़ टू बी देयर. सो इसके लिए पहले, नाउ दैट यू अंडरस्टूड, सेक्शन 235 होता है अमालगमेशन का, बट ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, टाइप्स ऑफ अमालगमेशन का एक चार्ट होता है. ठीक है, इफ यू कैन सी दिस, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज. ठीक है, ये मर्जर है, ये परचेज है, वो तो ठीक है. यहाँ पे ना कुछ तो भी दिया है. इफ यू सी दिस एरो, यहाँ पे दिया है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर इज अमालगमेशन सैटिस्फाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. एंड अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में दिया है इफ एनी वन ऑफ द प्रीवियस कंडीशंस आर नॉट सैटिस्फाइड देन इट विल बिकम परचेज. पहले यहाँ तक ठीक है. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड पॉइंट नंबर 2, मतलब ये वाला. Once you read this, you will understand थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए होगा. So it says shareholders holding not less than 90% of the face value of equity shares of the transferor company other than the equity shares already held therein immediately before amalgamation by the transferee company or its subsidiaries or their nominees shall become equity shareholders of the transferee company by virtue of amalgamation. अगर ये हुआ तो इट इज़ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर. अगर ये नहीं हुआ तो इट इज़ अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज. नाउ इवन आफ्टर रीडिंग दिस आई कैन गारंटी यू ऐसे इंस्टेंटली इसका आंसर नहीं आता. यू विल हैव टू कैलकुलेट. सो जस्ट लुक ओवर केयरफुली. अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सो सबसे पहले ना देयर इज ए लिमिटेड. ठीक है, ए इज गोइंग एंड मर्जिंग विथ ए बी लिमिटेड, राइट. ये हमको स्टोरी पता है. ए लिमिटेड इज गोइंग एंड मर्जिंग विद ए बी लिमिटेड. नाउ इफ यू सी देयर इज अनदर कंपनी गिवन ए सी लिमिटेड एंड इसका 100% होल्डिंग ए बी के पास है. मतलब ये ए बी की 100% सब्सिडरी है. पहले इज दिस ओके? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. ये जो तुमने क्वेश्चन पढ़ा ना उसका इंटरप्रिटेशन है. अनलेस यू इंटरप्रेट द क्वेश्चन हाउ डू यू सॉल्व इट, राइट. तो मेरी बात ध्यान से सुनना. सो ए सी में 100%, इफ यू सी AB held 100% shares in AC. यहाँ तक ठीक है. Now both AB and AC held 10,000 shares in A. मतलब if you see that, I'll just change the color so that it becomes more identifiable to you. AB and AC, they both मिला के held 10,000 shares in A Limited before merger. Is this okay? तो मतलब when we are calculating this 90% का rule, ये 10,000 शेयर्स तो नहीं गिने जाएंगे उसमें, क्योंकि इट इज एक्सक्लूडिंग दोज दैट द ट्रांसफरी कंपनी और एनी ऑफ इट सब्सिडरीज ऑलरेडी होल्ड. तो ये 10,000 तो नहीं कैलकुलेट होंगे. इज दिस ओके? देन इफ यू रीड इट, ए हैड 1 लाख शेयर्स इशूड इन टोटल बिफोर अमालगमेशन एंड 70,000. सो इफ यू अंडरस्टैंड, बिफोर अमालगमेशन इसके 1 लाख शेयर्स थे, जिसमें से 10,000 ए बी और ए सी के पास थे. इज दिस ओके? Out of which they said 70,000 were held by B, जो कि बाद में AB में मर्ज होने के लिए मान गया था. तो ये तो मान चुका है. So if you see the total calculation, 80,000 shares are in front of you. कहाँ से? 80,000 shares are in front of you. Okay? 80,000 shares अगर तुम समझो ना, 10,000 इन लोग के पास है और 70,000 बी के पास है, और बी भी मान गया और ये लोग भी मान गए, राइट. बचे कितने? सो इफ यू सी, यहाँ पे बस 20,000 शेयर्स बचते हैं इसके, राइट. एंड आउट ऑफ दिस 20,000 शेयर्स इन्होंने लिखा है दैट 10,000 शेयर्स डिड नॉट बिकम शेयर होल्डर्स इन न्यू ए बी. 10 नहीं माने हैं, 10,000 डिसेंटिंग है, 10 मान गए. पहले डिड यू अंडरस्टैंड द होल कैलकुलेशन? ये जितना भी अपने डिस्कस किया है केस है ना. The question is, assuming all other conditions for amalgamation in nature of merger is satisfied, ये क्या है? Understand guys. For this to be amalgamation in nature of merger, not less than 90% of those shareholders other than the transferee company and its subsidiary should agree. Now if you understand, 1 lakh shares है total, इसका 90% comes to 90,000, right? तो मतलब 10,000 अगर मना भी कर दे तो अपने को चलता. But the problem is 1 lakh में 10,000 ए बी और ए सी के,
तो मतलब 1 लाख में व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग 90%, दैट 10,000 कैन नॉट बी एडेड. तो अभी बचेगा 90,000. यस, इस 90,000 में से मिनिमम 90% शुड अग्री, राइट? दैट मीन्स 81,000 पीपल शुड अग्री, 81,000 शेयर शुड अग्री. अगर 90,000 में से 10,000 ने मना किया हुआ है, दैट मीन्स 80,000 हैव अग्रीड. तो 90% के हिसाब से आई नीड 81 and 80 have agreed. So this cannot be amalgamation nature of merger. This is amalgamation nature of purchase. Hello. देखो, if you like भारी था, मेरी भाषा में अगर तुम बोलो तो इसको बोलते हैं मजा आया. Because even if I didn't know, I'll be glad that somebody tells me this year. इतना कैलकुलेट करके एक MCQ निकालेंगे. Now, how many of you genuinely have not ever solved anything in so much detail about this particular topic? मतलब इस चैप्टर की बात नहीं कर रही, only for this topic. You've not solved anything so much in detail. हाँ, see, there are many of us. So anybody who thought, अबे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, it's okay ना. अच्छा ही हुआ किसी ने नया बताया. I would have loved being a student also if somebody came and told me something new only. देखो पता ये ऐसे भी कैलकुलेट होता है. I loved it. थैंक यू, तूने बताया भाई. एग्जाम में पता चलता उससे अच्छा तूने बता दिया. ओके, ठीक है. सो जस्ट फॉर दैट दिस वाज, आई सुपर लाइक दिस क्वेश्चन बिकॉज इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा. दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ योर एफर्ट. और इतना सा क्वेश्चन है, अमाल्गमेशन नेचर ऑफ मर्जर या परचेज. एंड अगर तुमने ये कंडीशंस की लिस्ट पढ़ी ना, बाकी कोई कंडीशन क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, खाली ये अकेला है. एंड इसमें सारा मस्ती था ए बी और ए सी का वो 10,000 शेयर्स जो माइनस होता है. नॉर्मली व्हाट यू वुड डू इज यू वुड कम अप सेइंग कि हाँ मैम हो गया ना. अभी 10,000 ने मना भी किया तो भी 90% ने तो हाँ बोला. बट वो 90% इन लोगों की शेयर होल्डिंग निकालने के बाद. यस, ठीक है. दैट वाज द ओनली ट्रिकी पार्ट एंड दैट वे दिस इज योर आंसर. इतना अच्छा ना कोई क्वेश्चन नहीं आ गया. आई एम टेलिंग यू, बाय फार आई ऑलवेज टोल्ड यू, इतना ईजी आगे कुछ नहीं है, इतना ट्रिकी आगे कुछ नहीं है. इसके बाद सब सिंपल ही है. Yes, ठीक है. Okay, so for now, okay, so for now moving ahead to the next question. चलें आगे. Okay, moving to question number 2 of today's session. B Limited was demerged to B Realty Limited and B Limited. What type of demerger is this? Now again you would be like, ma'am, कहाँ से आ रहा है? Where is this coming from? This is coming from the Institute of Chartered Accountants of India to a prospective chartered accountant. I have told you this 100 times. तुम्हारा syllabus, तुम्हारी बुक नहीं है. तुम्हारा syllabus जितना तुम्हारा knowledge उतना तुम्हारा syllabus. And your syllabus is beyond the books actually. ठीक है. इफ यू सी दीज ऑप्शंस यू विल ईजिली अंडरस्टैंड. बट फिर भी बी लिमिटेड वॉज मर्ज्ड इनटू बी रियल्टी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. व्हाट टाइप ऑफ डीमर्जर इज दिस? टोटल, पार्शियल, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या डीमर्जर इन नेचर ऑफ परचेज? ओके, आई कैन सी आंसर्स कमिंग अप एज बी, बी 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 बी. सबके आंसर्स बी. ओके, ओ आई कैन सी अ डी ऑल्सो. चलो ग्लैड. ए भी है, ए भी है. कोई सी बोल दो यार. तुमको तो पता ही है जैसे तुम सी बोलोगे वैसे ए बी सी डी हो जाएगा. फिर कोई ना कोई तो करेक्ट निकलेगा ही. ए व्हेन आई से कोई बी बोल दो, कोई सी बोल दो, मतलब अनम्यूट करके बोलने का नहीं. ठीक है. लेट्स कीप इट दैट वे, है ना. पब्लिक इज लाइक मैम. ओके, आई कैन सी ए बी एंड डी. नोबडी गिविंग सी. ओके, किसी अभी ना एक्चुअली एक जन ने ना ऐसे मेरे को बी दिखाने की कोशिश की थी बट बाजू का सी आएगा. लाइक वाह हो गया, ए बी सी डी वाला एक आंसर मिल गया. बट कोई बात नहीं,
तुम लोग नहीं बोलोगे ना, कोई सी नहीं बोलेगा ना इसका आंसर. पब्लिक इज लाइक हमको और कुछ चाहिए. आई डोंट नो द अदर 3 ऑप्शंस. आई नो व्हाट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज. दिस इज नॉट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. मेजॉरिटी ऑफ यू आर लाइक बाकी तीनों तो मैंने पहली बार सुना है, बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेरे को आता है, एंड दिस इज नॉट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज पार्शियल डीमर्जर. देखो, जब ओरिजिनल कंपनी खत्म हो जाती है तो उसको टोटल डीमर्जर बोलते हैं. टोटल है जब ओरिजिनल नहीं बच रहे. जब ओरिजिनल में से खाली तुमने एक पार्ट या एक सेक्शन निकाल के अलग कर दिया, एंड ओरिजिनल इज स्टिल कंटिन्यूइंग, दैट्स कॉल्ड पार्शियल डीमर्जर. यस, हेलो. एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, डीमर्जर इन नेचर ऑफ परचेज ऐसा क्लियरली समझ में आता है खाली डी ऑप्शन बनाने के लिए था. ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज. अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ दिस थिंग, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड इन नेचर ऑफ परचेज की डेफिनेशंस है लॉ में. डीमर्जर इन नेचर ऑफ परचेज की कोई डेफिनेशन नहीं है. ठीक है. सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसमें ऑब्वियसली ऑप्शन सिर्फ टोटल और पार्शियल था. अगर ऐसा होता ना कि बी लिमिटेड वॉज डीमर्ज इन टू बी रियल्टी एंड बी रियल एस्टेट, तो फिर टोटल हो जाता, क्योंकि ओरिजिनल कंपनी बची नहीं. Again, this is a part of introduction to the chapter. What is the types of merger, types of demerger, ये सारे introductory part. As I told you, procedure से if I ask you MCQs तो repetitive होंगे. Yes. Okay, समझा. पब्लिक इज लाइक ऐसा क्वेश्चन आने वाला था तो हमको क्यों बोला था पढ़ के आने का? आगे के पार्ट के लिए पढ़ के आना था तुमको. सो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन आउट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर. यस, ठीक है. ओके. तुम्हारी अभी शक्लें इतनी अच्छी लग रही है ना, फॉर दैट स्माइल. ट्रस्ट मी, यू गाइस आर लुकिंग सो गुड बिकॉज यू आर स्टिल स्माइलिंग एंड आई एम लाइकिंग इट. बट आई स्टिल प्रेस द कर्सर एंड गेट यू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज आई एम श्योर वो भी इतना बुरा नहीं है. आई एम होपिंग टुडेज सेशन टिल द एंड ऑफ इट ऑल्सो योर स्माइल वुड स्टे. आई एम होपिंग सो. बाकी लेट्स सी. ओके. सो द टाइम लिमिट विद इन विच रिप्रेजेंटेशन इफ एनी of sectoral regulators shall be made is within dash from the date of receipt of notice of the meeting to be called, held and conducted by the tribunal. Okay, sectoral regulators को पता है एक ऑप्शन होता है, तुमको कोई रिप्रेजेंटेशन करना है तो कर दो, उसके लिए उनको नंबर ऑफ डेज मिलते हैं. What are those number of days? So here are your options: 45 days, 30 days, 60 days, 90 days. Okay, I can see answers. Okay. बहुत सारे आंसर बी आ रहे हैं. बी सबके आंसर्स बी ही आ रहे हैं. इज नो अदर आंसर. देयर कैन बी नो आंसर. ये मस्त है. अपने में ऐसे लोग हैं जिनका नो आंसर है. बोला हेलो चिट्स एंड ऑल दिस यार, नो सॉरी वी डोंट हैव पेपर सो वी डोंट हैव दैट. वो हो सकता है बट कोई और आंसर नहीं दे रहे. देखो. ओके, बी सबके आंसर्स बी, सबके मेजॉरिटी. यूनिटी स्ट्रेंथ. ओके. सो अब जब तुम्हारी यूनिटी ही स्ट्रेंथ है, सो बी के सिवा किसी का कोई और आंसर नहीं है. सो यू आर सो गुड एट इट. मैं तुम्हें बोला प्रोसीजर्स तो ऐसे याद होने चाहिए. इट इज 30 डेज. विद इन 30 डेज दे हैव टू रेज देयर ऑब्जेक्शंस इफ एनी. कहाँ लिखा है देखो, सेक्शन 230 में, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाले चैप्टर में. ये यू नो व्हाट दिस इज. दिस इज अपना समरी बुक का या मेन बुक का पेज होगा जिससे अपने को रिलेट कर पाएंगे. ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है दैट अबाव अथॉरिटी शैल हैव अ राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. ओके, सिंपल क्वेश्चन. आई टोल्ड यू दिस अर्लियर ऑल्सो. शायद फर्स्ट सेशन में ही बोला था. टाइम लिमिट्स एंड पेनाल्टीज ऐसा के फेवरेट है इन MCQs. एंड टू वाउच फॉर इट यू कैन गो एंड चेक May 2021 का RTP. तुम्हें रियलाइज होगा ये बहुत मस्ती आ रही है इन लोग को. ठीक है. सो बल्कि मॉक टेस्ट पेपर्स भी देखोगे तो भी दे आस्किंग पेनाल्टीज एंड दिस टाइम लिमिट्स ओनली इन MCQs. कि मतलब एकदम ईजी बॉल डालो, ये लोग वैसे भी छोड़ देंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तक सब इजी चल रहा है ना? पब्लिक इज लाइक हाँ बट वी डाउट यू. ए यू नॉट सपोज टू डाउट मी यार, कम ऑन. इजी है सब, बहुत इजी है. द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स. व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द सेम? ईजीएस्ट क्वेश्चन somebody could ever ask you अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा है तो. इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होता है दुनिया में. अगर ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो डिफिकल्ट है. ओके. सो in scheme of compromise arrangement, the approval should be done by how many people? Here are your options. A, it shall be approved by more than 50% majority
in number of members, class of members, creditors and class of creditors who are present and voting. B. It shall be approved by more than 75% majority in value of members, class of members, creditors or class of creditors who are present and voting. C. It shall be approved by more than 75% majority in number of members, class of members, creditors and class of creditors who are present. And D. Both A and B together. मतलब 50% in majority plus 75% in value. Okay, so I can see the answers coming. Answer आने दो. Okay, D. हाँ ठीक है, D आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है D. सब पब्लिक का आंसर आ रहा है D. कुछ लोगों ने ऐसे साइड में आंसर्स रखे हुए हैं, जैसे ही मैं पढ़ना चालू करती हूँ ना, व्हाट आर एवरीबडीज आंसर्स, दे लाइक ये लेट्स गो विद मेजॉरिटी. ठीक है, तो वो तुरंत वो आंसर उठा देते हैं. D. ओके, D. ऑल द आंसर्स आर D. उल्टा D सीधे ए B आया, आंसर B भी आया. ओके, आई कैन सी एन आंसर B. ये देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग नेम्स ऑफ पीपल ना हु आर नॉट आंसरिंग, तुमको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आई टोल्ड यू ये लेक्चर बाद में ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये बाद में यूट्यूब पे जाएगा. तो आप चाहते हो फेमस होना? नहीं ना. सो आई एम नॉट टेकिंग योर नेम्स. तो कृपया करके खुद ही अपने आंसर्स वो चिट पे लिख के मेरे को दो. आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो, तुम चैट में जाके आंसर टाइप कर रहे हो, मेरे को नहीं दिख रहा है ना. तो इसलिए ना वो चिट पे मेरे को आंसर दिखाओ, इफ़ यू डोंट वांट मी टू नेम ईच वन ऑफ यू, है ना. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे फिर तुम फेमस हो जाओगे. ओके, डी. एक बी को छोड़ के सबका आंसर डी है ना. ओके, चलो ठीक है, सबका आंसर डी. लेट्स गो फॉर इट. आंसर क्या है? ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बोला, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन लाइफ में हो ही नहीं सकता. वाई? बिकॉज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज अप्रूव्ड बाय majority in numbers plus 3/4 in value of the total people present and voting. ये इसको मैं जब क्लास में ये पढ़ाती हूँ, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, इट इज़ नॉट OR, इट इज़ नॉट SR, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. यस, मेजॉरिटी इन नंबर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ द वैल्यू शुड एक्सेप्ट इट. इसलिए इसका आंसर है A and B टुगेदर. यस, ओके. पब्लिक को तो पता ही था, सबका आंसर D था. एक जन का B था बट बाकी सबका D था. तो तुम तो पढ़ के आए हो, ठीक है. तुम्हारी स्माइल नहीं जानी जब तक तुम्हारा कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है. सो मूविंग अहेड 230 ओवर हियर, यहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू. सो इफ यू रीड इट, मेजॉरिटी इन नंबर्स रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू शुड अग्री टू दिस. यस, हेलो, मज़ा आ रहा है? मज़ा, क्योंकि तुम समझो ना. और कितने सेशन तुम्हें लग रहा है तुम्हें मज़ा आएगा? आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अभी का एक ही चैप्टर है ना आज. नेक्स्ट सेशन में तुमको पता है 2 चैप्टर हैं, उसके नेक्स्ट सेशन में 3-4 हैं, उसके नेक्स्ट सेशन में 6 हैं. यू गोइंग टू लव इट, बहुत मज़ा आने वाला है. तो आज इन्जॉय कर लो आराम से, क्योंकि नेक्स्ट सेशन तो तुम बहुत पढ़ के आए होगे ना, है ना. ओके, सो मूविंग अहेड एंड टू द सॉरी या हर्ष टाइम बोलो. No, you calculate. Only equity shareholders have a right to vote, na? Because the term is members, that's why. No, that is true. But when it is about compromise, normally only equity shareholders vote. If there is any compromise specifically happening with preference shareholders only, then they get to vote, because it's also a class, na? Members or a class of members. Then if it is specifically for preference, to hi. Otherwise, voting is always only with the equity shareholders. Okay? Yeah. So, आगे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन. पब्लिक के सब आंसर्स करेक्ट जा रहे हैं. आज तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जा रहा है सबका, है ना. या पब्लिक को डाउट आ रहा है, भाई कुछ तो लफड़ा है, मेरे साथ ही लफड़ा है. हाउ कैन आई गो सो राइट? वेरी गुड, यू गॉट सुपर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सुनो, मिस्टर आनंद, हु वॉज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, वॉज ऑफर्ड अ प्राइज फॉर परचेज ऑफ हिज शेयर्स बाय द मेजॉरिटी. The same was disbursed within the stipulated time as per the act. However, Mr. Anand was out of town and returned only after 2 months of stipulated deadline. Will he be able to receive the amount? If yes, up to what period? If you understand, the best part of such questions is will he be able to receive the amount के बाद उन्होंने खुद पूछा if yes up to what period, मतलब आंसर तो yes है, क्योंकि इसके ऑप्शन में सिर्फ टाइम दिया है, ठीक है.
सो एक्सेप्ट फॉर डी, वरना इट इज़ वेरी रेयर. अगर ये वैसा होता है डिस्क्रिप्टिव तो पक्का तुम लिखते कि लग तो रहा है मेरे को कि आंसर येस है. ठीक है. नाउ विद इन हाउ मच टाइम? ए, येस अप टू 6 months. बी, येस अप टू 9 months. सी, येस अप टू 1 year. एंड डी, नो इट्स टाइम बार्ड, नहीं मिलेगा. Okay, I can see the answers coming, and unity, strength, once again, all the answers that I can see coming is C, 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 C. Okay. C के सिवा कोई आंसर नहीं दोगे तुम लोग? सबका आंसर C. उल्टा पब्लिक इज लाइक अच्छा रुको, उल्टा C, उल्टा C, सीधा C. यू वांट चेंज तो हम तुमको देते हैं. तो उल्टा C, सीधा C सब करने के बाद एवरीबडीज आंसर. आई कांट इवन सी अ सिंगल B, A, कुछ भी नहीं. भाई यूनिटी, तुम लोग क्या पढ़ते भी ग्रुप स्टडी जूम कॉल पे पढ़ रहे हो क्या आजकल? हाँ, कि मैम अब वो जैसे ख़त्म करते हैं उसके बाद हम ऐसे एक जूम कॉल बुलाते हैं, हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं. सो वी आर ऑल गोइंग राइट ऑन द सेम थिंग ऑब्वियसली अप टू 1 year. या ये कितना ईजी चैप्टर है. यू शुड फॉल इन लव विद दिस, क्योंकि जब तुमने इसको पढ़ा होगा ना यू वुड हैव स्टार्टेड हेटिंग इट, है ना. तो ओनली आफ्टर दिस यू कैन स्टार्ट लविंग दिस. सो सेक्शन 236 यहाँ पे ना क्लियरली दिया है that up to 1 year you are entitled to get your money. अगर नहीं ले पाए हो within 60 days वगैरह तो up to 1 year you can always get your money. Yes. ठीक है. तुमको कैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? मेरे को तो आ रहा है. हाँ हर्ष बोलो. मतलब 1 साल की मतलब आई के अंदर नहीं आता है तो वो मनी कहाँ से आएगा? इन्वेस्टेड IPF. एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में से IPF या इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. so any gain from that amount after 1 year? सेबी के रूल्स हैं. IPF से आप पैसे क्लेम कर सकते हो. अगर आपने सेबी के सारे रूल्स रेगुलेशंस मांगेंगे यू कैन, डिविडेंड भी आप IPF से वापस ले सकते हो. बट देन यू गो टू सेबी, देन इट गोज अंडर सेबी. Okay, so moving ahead, the next question. I am sure you are liking it. है ना. तुम्हारे स्माइल्स तो रहने दो. सी यू हैव टू गिव मी अ मोटिवेशन. नेक्स्ट टाइम तुमको डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए कि इजी. देखो कैसा होता है ना, तुम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद भी दुखी घर पे जाते हो. तुम लोग अगर इजी क्वेश्चन के बाद भी दुखी ही घर पे जाने वाले हो तो मतलब योर एजेंडा इज नॉट अबाउट द क्वेश्चन, इट इज़ अबाउट गोइंग बैक सैड. इसलिए मेरा 1 घंटे का सेशन है, मम्मी को भी पता है, पापा को भी पता है, इसके बाद ये दुखी आएगा बाहर. तो दिस के नॉट बी सच अ सेशन कि अगर तुम्हें सच्ची आधा घंटा दुखी होना है. यू गॉट न्यूज़ चैनल्स यार, ऐसे क्या कर रहे हो लाइफ में. टुडे इन टुडेज डेट इफ़ यू रियली वांट टू फील सैड गो एंड वॉच एनी न्यूज़ चैनल. यू स्टार्ट फीलिंग सैड, बैड, एवरीथिंग. तो यहाँ पे ना हम अपना यू नो आई कम टू एनकरेज यू, एट द सेम टाइम टीच यू सर्टन मोर थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, है ना. तो आज तो कम से कम खुश दिखो. मेरे को ऐसा लगे कि हाँ चल ईजी क्वेश्चन से कुछ फ़ायदा भी होता है ना. ओके, आज तो सबकी स्माइल यहाँ तक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मे बी डिस्पेंस्ड विद बाय NCLT. आई होप यू नो, जब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा होता है तो NCLT कॉल्स फॉर अ मीटिंग. ठीक है. बट NCLT ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिस्पेंस विद होल्डिंग ऑफ दिस मीटिंग. अब ये जो पावर है ना गाइस, जस्ट फॉर योर नॉलेज, वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट. नॉर्मली मतलब NCLT का पावर है मीटिंग बुलाने का, बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ. तो यू विल नेवर फील दैट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूनिक. वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट और यूनिक? आई टेल यू. बिकॉज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नए एक्ट में अभी नोटिफाई हुआ, लाइक यू नो अ ईयर और 2 अगो. ठीक है. उसके पहले हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पढ़ रहे थे पुराने एक्ट का. एंड पुराने एक्ट के कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में लिखा था दैट इवन द कोर्ट, क्योंकि तब NCLT नहीं था, इवन द कोर्ट कैन नॉट डिस्पेंस विद होल्डिंग ऑफ दिस मीटिंग. तो इसलिए ये इतनी बड़ी चीज़ है क्योंकि पुराने एक्ट में कोर्ट भी इस मीटिंग को कैंसिल नहीं करवा सकता था और नए एक्ट में NCLT इस मीटिंग को कैंसिल करवा सकता है. इसलिए ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनीबडी हु हैज़ यू नो ईदर गिवन पहले अटेम्प्ट और फिर गैप लेके दे रहे हैं या फिर इस चैप्टर को पहले पढ़ा था उसके बाद अब पढ़ रहे हैं, तो दे विल ऑलवेज फील लाइक कि एक सेकेंड, ये तो हमको पता है, वो चाहें तो भी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, बट नाउ वो उस मीटिंग को कैंसिल कर सकते हैं. इसलिए ये पॉइंट ना हमेशा आई टेल माई स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ICAI के पास दोनों टाइप के स्टूडेंट हैं. वो भी जिन्होंने पुराना पढ़ा नया पढ़ा तो वो फिसलेंगे. येस. तो आई वॉन्ट यू ऑल्सो कि ऐसा ना हो यू फील लाइक ये तो कचरा पॉइंट है, इसका क्या ध्यान रखने का, जाने दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. येस. सो नाउ इन वॉट सर्कमस्टांस कैन दिस मीटिंग बी
disposed of. Okay, first, if 70% of the creditors in value agree and confirm it with the scheme by way of affidavit, 80% plus affidavit, 90% plus affidavit, या none of the above. I don't know about you, but I am very happy with your answers today. Okay, I can see all the answers coming as C, 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 C. C, okay, C. सबका आंसर सी, उल्टा सी, सीधा सी, यू भी बना रखा है किसी ने, कोई बात नहीं, यू का ऑप्शन है नहीं. सो विद ऑल द ओके ओके आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट. सबका आंसर सी है. ऑब्वियसली ना, व्हेन 90% पीपल अग्री विद एन एफिडेविट, तभी आप ये कर सकते हो. कहाँ लिखा है मैम, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है सेक्शन 230 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस. ऐसा एक रूल है, ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स if at least 90% of the value agree and confirm by way of affidavit to the scheme or compromise. वापस करेक्ट हो गया यार तुम्हारा आंसर. तो सबके सारे आंसर्स करेक्ट. जहां आज बैठे हो वहीं रोज बैठा करो, या जैसे आज पढ़ा है वैसे ही रोज पढ़ा करो. नाउ यू डोंट टेल मी मैम जैसे क्वेश्चन आज लाए हो वैसे ही रोज लाया करो. दैट इज नॉट हैपनिंग. ओके, सो इट कैन नॉट बी मैम, फेयर होते ना अपन. चलो, सो दिस इज डन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम सो हैप्पी. मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे कितना पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने. PQR Limited and LMN Limited have proposed scheme of amalgamation between them under section 232. They are seeking your advice on which of the following approvals can be asked for in petition to be filed before NCLT for the proposed scheme. Honestly, कोई section में नहीं है ये, वापस तुम्हारे common sense की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. So here are your options. Change in main object clause of MOA, reduction of share capital, dissolution of the transferor company without winding up, या all of the above. They are asking for amalgamation. वो NCLT से क्या क्या मांग सकते हैं amalgamation के साथ साथ? What all orders can they seek? Okay, I can see answers coming up now. Okay, I can see A. इनको ऐसा ना इंट्यूशन आ रहा है. Okay, A, B. Anshi, what's your answer? Okay, A, B, D. Very good. मेरे को लग रहा है ये ABCD वाला बनने वाला है बहुत जल्दी. A, B, D, D. Okay, D. प्रियांश, I can see your answer. D. और कोई सी नहीं बोले क्या? इस बार फॉर अ चेंज आई वेंट टू चेक इन द चैट टू फाइंड समवन सेइंग सी. ओके, सो नाउ ये मेरे को मिल गया सी. ABCD. We have a question with all the answers being correct. A, B, C, D, चारों आंसर्स करेक्ट हैं. लास्ट सेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था. आई फेल्ट सो बैड. अब हो गया. एंड स्पेशली बिकॉज आई टोल्ड यू कोई सेक्शन नहीं है, कॉमन सेंस है. अगर तुमने अमाल्गमेशन का सेक्शन पढ़ा है तो यू रिमेंबर आई टोल्ड यू द अदर टाइम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस. याद है, लॉ में हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखते, ग्रे में लिखते हैं. ऐसा कहीं नहीं लिखा माइनर कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर, बट ये लिखा माइनर को डिन नहीं मिलेगा. तो दैट मीन्स जब डिन नहीं मिलेगा तो डायरेक्टर नहीं बनेगा. सो यू हैव टू कम बैक उल्टा. Now, it is nowhere written what all can be asked for in scheme of amalgamation, but it is written that what all orders can NCLT pass. And if you understand, एक उनका general power भी है जिसमें वो कुछ भी पास कर सकते हैं. तो if you see it that way, कुछ NCLT के पास तुम amalgamation के लिए जा रहे हो, amalgamation के टाइम पे तुम अपना object clause change नहीं करा सकते. Just let's talk common sense guys. ठीक है? You just think NCLT, 2 companies, we are merging. हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, कम चल रहा, ज़्यादा, whatever is our problem, we decided to merge. मर्ज होने के बाद we want to change our object clause, we want to add new things or remove existing things. You think NCLT मना कर देगा? Can I ask for this to NCLT? कि भाई तू जो हमें अमाल्गमेशन का ऑर्डर दे उसमें नया ऑब्जेक्ट क्लॉज आएगा? क्योंकि इफ़ यू नो MOA AOA साथ में जाते हैं, अटैचमेंट, राइट? तुम्हें लगता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अमाल्गमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, सब में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता ही होता है. रिडक्शन, डाइल्यूजन, डिमिनिशन. हेलो,
ये चीज़ें हम नहीं मांग सकते. डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफर कंपनी विदाउट वाइंडिंग अप, ये तो उनके पावर्स में, ऑर्डर में डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप लिखा होता है. इफ यू अंडरस्टैंड, इसका ना सबसे कॉमन सेंस वाला आंसर था ऑल ऑफ द अबव. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम एनसीएलटी. जब तुम अमालगमेशन के लिए गए हो तो यू कैन आस्क देम, यू कैन रिक्वेस्ट देम, हमें ये सब करना है, एंड दे विल अलाउ यू. दे मे डिसअलाउ यू, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं था वो क्या अलाउ करेंगे क्या नहीं. व्हाट ऑल कैन यू आस्क फॉर? एनसीएलटी कैन आस्क फॉर एवरीथिंग. प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? व्हेन वन ऑफ दीज पावर्स वाज नॉट विद एनसीएलटी, इट वाज विद सीजी, तो तुम अटक जाते. तो यू हैड टू बी वेरी केयरफुल. ओ ये सीजी का है, ये एनसीएलटी का पावर नहीं. बट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लिखा है क्या कहीं? इन्वेस्टिगेशन लिखा होता तो एक बार तुम सोचते भी वो तो सीजी का पावर है. हेलो, ये सारे एनसीएलटी के पावर्स हैं. गया, चालू हो गया, सबका स्माइल गायब. हेलो, ओके. तो ये दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू, डोंट गो बाय बुक ऑलवेज. थोड़ा सा अपना दिमाग भी एक्टिव रखो. सर्टन थिंग्स कैन बी सॉल्व बाय योर ब्रेन ओनली. यू आर टैलेंटेड इनफ टू सॉल्व हाफ द क्वेश्चन जस्ट बाय यूजिंग जितना नॉलेज तुम्हारे पास है. तुमने कभी ऐसा ट्राई किया? कभी भी ऐसा ट्राई किया कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कोई एक एमसीक्यू की बुक उठाई और सॉल्व करना स्टार्ट किया? ऐसा कभी कोई सब्जेक्ट में ट्राई किया? क्या होगा ना, क्या सोच के करते हो कि देखते ना कितना याद है. मैं बोल रही हूँ इवन इन दैट सिचुएशन देखते ना कितना याद है. मे बी यू कैन सॉल्व 50% ऑफ देम, एंड 50% के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना यार. बट बस वो आपने क्या कर रखा है ना, यू हैव लॉस्ट दैट कॉन्फिडेंस कि मैं अपने दिमाग से भी कुछ कर सकता हूँ. नहीं नहीं, मैंने जो पढ़ा है वही मेरे को आएगा, जो मैंने नहीं पढ़ा वो मेरे को नहीं आएगा. तुम्हें लगता है सीए बनने के बाद हर चीज़ पढ़ी हुई ही आएगी लाइफ में? देयर बी सो मेनी थिंग्स यू नेवर कम अक्रॉस. बट आ गया यार, एक क्लाइंट आ गया आज ये वाली चीज़ वाला, अब इससे क्या बात करें? इसको बोले नहीं मेरे सिलेबस में नहीं था, तो कैन बी ना. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि तुम बहुत ज़्यादा अकाउंट्स वाले बनते हो, क्यों? मेरे को अकाउंट बहुत अच्छे से आता है मैम, मेरे को लॉ का लैंग्वेज नहीं अच्छा लगता. ओके, आज की डेट में अमालगमेशन का एक सम आईसीआई बना के देता है, एंड यू नो हाउ टू पास एंट्रीज फॉर इट. तुम उसकी बैलेंस शीट भी बना दोगे, सब कर दोगे. बट प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें लगता है सम के फॉर्मेट में आएगा अमालगमेशन? अमालगमेशन आएगा कोर्ट का ऑर्डर. द क्लाइंट विल कम टू यू विद द कोर्ट ऑर्डर कि लो अब इसकी एंट्री करो. यू कैन नॉट टेल हिम एक काम करो, पहले ये ऑर्डर लेके आईसीआई के पास जाओ, आईसीआई को बोले उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट करे, फिर मेरे पास लेके आओ, फिर मैं एंट्रीज करूँगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट, और डू यू नो इस नाम के साथ यू गॉट सो मच रेपुटेशन अटैच्ड. भाई वो सीए, उसको सब आता होगा. क्या आता है क्या नहीं वो अपने को मालूम, क्योंकि पहले तो हमारा सिलेबस इतना, उसमें से हमने पढ़ा इतना, उसमें से हमको याद रहा उतना, फिर एग्जाम में इतना लिखा. अब करेंटली तो इतना ही आता है, बट उसको क्या लगता है सीए भाई इसको सब आता है. तो लेट दैट रेपुटेशन बी ना. यस, दैट्स द रीजन वी से डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधी चीज़ तो बस इसके नाम से ही हो जाती है. यू गेटिंग इट? ओके, हेलो, ठीक है. सो फॉर नाउ द आंसर ओवर हियर इज ऑल ऑफ द अबाव. काफ़ी कॉमन सेंस एक्टिव पॉजिटिव वॉइस से भी इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि इट इज़ नोवेयर रिटन इन ब्लैक एंड वाइट कि ये सब मांग सकते हो, बट ग्रे में कहीं है जिसमें से तुम निकाल लो. ओके, जस्ट कीप योर ब्रेन्स वर्किंग यार, उसको बंद मत करो, वो चलते रहेगा. आधी चीज़ें तो बिना ज़्यादा इसके भी हो जाएगा सॉल्व. तो सेक्शन 232 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर से ही आता है, क्योंकि व्हाट आर द ऑर्डर्स दैट दे कैन पास, उससे यू कैन गो फॉर व्हाट ऑल कैन यू आस्क फॉर. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले स्माइल अगेन. अच्छे लग रहे थे यार हंसते हुए. With whom will the central government file an appeal if it is of the opinion that such a scheme is not in public interest or in the interest of creditors? अमालगमेशन की स्कीम है और इनको लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो सीजी किसके पास अपील फाइल करेगी? अगेन ये चैप्टर अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे लोगे, बट फिर भी ये लो तुम्हारे ऑप्शंस. ए, कैन नॉट मूव एन एप्लीकेशन. B, it may file an application before the tribunal. C, it may file an application before the parliament. यही सही लग रहा है मेरे को. It may be through special leave filed before Supreme Court. ये भी अच्छा है. Okay, I can see unity, strength again. सारे के सारे आंसर्स अब तक इस B, B, सबका भी, सबका आंसर भी. ओके,
ठीक है, जब सबका ही आंसर बी है तो फिर इसका भी आंसर बी होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज तो दोनों बहुत ही अच्छे थे। पार्लियामेंट मतलब जहाँ काम के काम नहीं हो पा रहे हैं वहाँ ये डिस्कस होगा कि एक कंपनी के अमालगमेशन की स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, इसको रोकना है। ट्राइब्यूनल अलाउ कर रहा है, ट्राइब्यूनल को सीजी, एंड पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखने का काम इज ऑलवेज ऑफ सीजी, तो सीजी विल मेक एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल। कहाँ लिखा है मैम? यहाँ लिखा है 233 में। वैसे यहाँ पे ना क्लियरली ऐसे लिखा है, ठीक है, कहाँ लिखा है, जस्ट रीड दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर ट्राइब्यूनल इन फॉर्म CAA 13 stating its objections and requesting that the tribunal may consider the scheme under 232 if the central government is of the opinion such scheme is not in public interest or in the interest of creditors. तो पता है ये जो बुक का फोटो होता है ये मैं क्यों डालती हूँ? आई वॉन्ट यू टू गेट वो एक आइडिया लो कि पूरे बुक के कहाँ से उठा के MCQ आ जाएगा। तो बुक में जब तुम एक एक लाइन पढ़ रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है पता है पूरा पेज मतलब टर्न तो हो गया बट यू सडनली रियलाइज क्या लिखा था उस पर, तो ऐसे घूम गया। तब ना तुम्हें ये आना चाहिए कि भाई वो पूरे बुक के पेज के कहीं से भी उठा के ना MCQ आता है, सो यू बेटर रीड इट केयरफुली। यस, है ना, MCQ कहीं से भी आ सकता है। सो मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी लिमिटेड is a wholly owned subsidiary company of Eternal Limited. Eternal Limited makes an application for merger of holding and subsidiary companies under Section 232 of the Companies Act 2013. The company secretary of Eternal Limited states that the company cannot apply for merger under 232 of the said act. He further stated that the company shall have to apply for merger as per 233, that is fast track. State the correct statement in terms of validity of the difference in opinion of the CS. Okay, इस बात को थोड़ा पर्सनली लेना। अभी देखो क्या हो रहा है ना, तुम हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सामने वाला है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। अब भी प्रूव हो जाएगा कि किसको ज़्यादा लॉ आता है, तुमको कि उनको, ठीक है। एंड ये याद रखना ICAI ने ऐसा क्वेश्चन बनाया है तो मतलब सोच लो तुम, इट इज़ ऑल अबाउट योर रेपुटेशन नाउ, ठीक है। कंपटीशन हो रहा है, सोच समझ के आंसर देना। सो A, opinion of the CS of Eternal Limited is valid holding that merger shall be as per 233. B, opinion of CS of Eternal Limited is invalid as merger shall be possible only as per 232. C, opinion of CS is invalid as provision for fast track is under section 233 are of optional nature. And D, opinion of CS of Eternal Limited is invalid as the provision given for fast track in section 233 can be made only between small companies. चलो भाई आंसर दो। ओके, आंसर्स आर कमिंग। सी एवरीबडी सी। वाह भाई, सबका आंसर सी। ओके, नाउ दैट ऑल योर आंसर्स आर सी, क्योंकि अगर तुम ऐसे भी देखो ना ऑब्वियसली इसका आंसर सी है, ठीक है। एंड वैसे भी जनरली आई एम नॉट सेइंग ये कोई थंब रूल नहीं है, ये वो CPT नहीं चल रहा है कि जहाँ ऑल ऑफ दी अबव दिखा वही आंसर है, वो मत करना। बट नॉर्मली ऐसा होता है जब भी वो बोलते हैं ना CS का ये ओपिनियन है तो 90% ऑफ द टाइम्स एक्चुअल आंसर कुछ और ही होना होता है। तुम जब भी ऐसे का PM पढ़ोगे या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, वो हमेशा से बोलते हैं CS ने ये पॉइंट आउट किया, तुम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बताओ, और तुमको हमेशा कुछ अच्छा ही बताना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरनल खुन्नस चल रहा है, ठीक है। अभी देखो इसमें हमने एंड में क्या बोला, ACS, तुमको नहीं पता, हमको पता है। हमको CS से ज़्यादा कंपनीज एक्ट पता है, एंड दिस इज सो रेयर यू नो, अदरवाइज ऑब्वियसली हु नोज मोर कंपनी लॉ? CS। क्यों? इट्स लाइक मैम ऐसा मत बोलो, अरे फैक्ट है CS किया है मैंने तभी मैं बोल रही हूँ ना। आई टेल यू कैसे। देखो फाउंडेशन में उनको पूरा कंपनीज एक्ट होता है, सेक्शन 1 टू द लास्ट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, सब कुछ फाउंडेशन में। जो अपने को पता है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ऑल एल ऐसे करके हमने लॉ निकाला था, तब वो पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ रहे थे फर्स्ट सेक्शन से लेके लास्ट तक। फिर जब वो पास होते हैं ना, पास, उसके बाद जब वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, वो फिर से सेक्शन 1 से लेके लास्ट सेक्शन तक कंपनीज एक्ट 100 मार्क के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद जब वो पास होते हैं ना, पास होते हैं और वो फाइनल में आते हैं, वो फिर से सेक्शन 1 से लेके लास्ट सेक्शन तक 100 मार्क के लिए पढ़ते हैं। अगर एक एक अटेम्प्ट में भी पास हुए तो 3 बार कंपनीज एक्ट पढ़ा है, जिसमें अगर अटेम्प्ट लग गया
तो PhD का डिग्री साथ मिलना चाहिए। अब तुम किस बेस पे बोल सकते हो कि अब एक CA को कंपनीज एक्ट CS से ज़्यादा आएगा? उसने कितना पढ़ा मालूम तुमको? कदर ही नहीं है। अपन अगर कितने भी अटेम्प्ट लगे, अपना सिलेबस बटा हुआ है, अपने को कंपनीज एक्ट आता ही इंटर से है, उसमें भी आधा और आधा फाइनल में। इंस्टीट्यूट इज़ वेरी काइंड, तुम बिना गाली देते हो। तुम सोचो पूरा 3 बार 100 मार्क का कंपनीज एक्ट, बाप रे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। जब तुम CS करते हो ना, तुम्हें पता चलता है इतना थ्योरी है लाइफ में, इतना थ्योरी। 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट थ्योरी, 8 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट थ्योरी। इट्स गुड। If any one of you is doing CS, you will surely relate to what I'm saying. There's a lot of theory to study. But ठीक है, हमको हो जाता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, चले नेक्स्ट। ओके, पहले इसकी तो बात कर लें। 233 कौन सा चैप्टर? ऑब्वियसली ना, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मर्जर। यहाँ पे कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है, देखो। A company which is eligible for availing benefit of 233 may instead of using the provisions here go for 232 also, क्योंकि 233 कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल। यस, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, NCLT has passed a order approving the merger of RGL Private Limited with RGL Private Limited with RVGL Limited. The order has been passed by NCLT on 25th January 2020. The order is effective from 1st March 2020 and has been received by RGL Private Limited on 27th of Jan 2020. Which of the following statements is most appropriate as regards submitting order to Registrar of Companies? ठीक है, सब डेट्स का मस्ती है इधर। A. RGL Private Limited has to submit the order to ROC by 24th February 2020, being 1 month from the date of passing order by NCLT. B. RGL Private Limited has to submit the order to ROC by 26th February 2020, being 30 days from the date of receipt of order passed by NCLT. C. RGL Private Limited has to submit the order to ROC by 1st April 2020, being 30 days from the date of receipt of order passed by NCLT, being effective. And D. RGL has to submit the order to ROC by 26th April 2020, being 3 months from the date of receipt of order passed by NCLT. So, I want to see the answers. पब्लिक हमको तो समझ में आए, पहले रुको। अच्छा, वेट। ओके, ओहो, इतना सोच के भी सब एक जैसा आंसर दे रहे हैं। बी, ओह आई गेट। नियति, दिस इज चीटिंग। हाँ, आपने पहले ए घुमा दिया बी की तरफ, मैं खुश हो रही थी, किसी ने तो ए बोला। ओके, सो नाउ आंसर्स, एवरीबडी आंसर्स बी। सबका आंसर बी, और कोई आंसर नहीं दोगे? ऐसे यूनिटी में चलोगे तुम लोग? हाँ, ओके, ऑब्वियसली इसका आंसर इज बी, बिकॉज इट इज टू बी डन विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ना। ठीक है, कहाँ लिखा है मैम? 232 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। देखो, फाइलिंग ऑफ ऑर्डर विद ट्राइब्यूनल का एक रूल है जिसमें लिखा है एवरी कंपनी शैल फाइल द ऑर्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। क्या पब्लिक के आंसर्स एकदम चकाचक करेक्ट जा रहे हैं एंड पीपल आर वेरी हैप्पी कि भाई मज़ा आ रहा है इसमें, तो एकदम ये वाला अच्छा है। ऐसे ही वाले क्वेश्चंस हम कल से करना चाहेंगे। ओके, बट यू नो ना, आई टोल्ड यू, क्वेश्चन बनाने वाले को सबसे ज़्यादा खुशी किस में होती है? जब तुम्हें आंसर नहीं आए। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी बनाए, तो ICAI ने बनाए। अब उनको दुख होगा, तुमको सब आता है। नाउ मूविंग अहेड, अ बिग क्वेश्चन। Court passes the order to Pento Laboratories for conducting meeting of members for considering the scheme of compromise and arrangement. Company sent notice of meeting to all of its 1,000 members holding total 30 lakh shares. On the date of meeting, only 580 members of holding 18 lakh shares attended the meeting and 400 members holding 14 lakh
voted in favor of the scheme of compromise and arrangement, and remaining voted against the scheme. With reference to provisions of Companies Act 2013, state whether scheme gets proper required approval of members or not. पहले पढ़ लो इसको आराम से, then I will show you the options. इसका आंसर पहले तुम्हारा एक बेसिक आंसर रेडी होना चाहिए. Ready? Here are your options. A. Yes, scheme of compromise and arrangement gets proper approval of 3/4 of the value of members or class of members. No, scheme of compromise arrangement didn't get proper approval of 3/4 of the value of members or class of members. Yes, scheme of compromise arrangement and gets prior approval of 50% of the value of members or class of members. No, scheme of compromise arrangement didn't get proper approval of 50% of the value of members or class of members. Okay, I can see the answers coming up now. आंसर्स तो तुम्हारे पहले से रेडी होने चाहिए थे ना. यू जस्ट हैव टू से येस और नो, मतलब ए और बी और सी और डी, मतलब वट एवर इज योर आंसर. ओके, आई कैन सी ए ए ए ए. ओके मुग्धा, आई कैन सी इट ए ए ए. सबका आंसर है, सबका. ये कोई मज़ा आ रहा है? ये आज किसको मज़ा आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा. किसको आना चाहिए था? रोज़ किसको मज़ा आता है? मेरे को. और आज किसको आ रहा है? तुमको. कोई बात नहीं, टाइम्स चेंज. ऑब्वियसली द आंसर इज ए. क्योंकि इफ़ यू नो ये चीज़ ना, वेन एवर आई टीच दिस चैप्टर आई मेक इट अ पॉइंट, इस पर ना मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ सो दैट थोड़ा एक बार तुम अटको एंड देन आई टेल यू. इट इज़ ऑलवेज द नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग. पब्लिक आया नहीं तो हम क्या करें? आके वोट नहीं कर रहे, हम क्या करें? जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है सिर्फ उन्हीं को गिनते टोटल में. यस, एज पर विच द आंसर इज ए. तुमको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं, तुमको सब आता है. सेक्शन 230 में देखो यहाँ पे लिखा, भी थोड़ी देर पहले भी हमने यही पढ़ा था, जिसमें सिर्फ एक जन रॉन्ग गया था, बाकी सबका आंसर सेम था. और इस बार तो सबका ही आंसर करेक्ट है. ब्रिलियंट. ओके, ठीक है. नाउ इट कंप्लीट्स आवर टुडेज सेशन. तुमको समझा क्या? मस्त सेशन खत्म हो रहे हैं. अभी वी आर डन विथ 5th सेशन ऑल्सो. नाउ देयर इज ओनली 6, 7, 8, 9, 4 मोर टू गो एंड द होल सिलेबस टू गो. है ना? बहुत मजा आएगा ना. ठीक है, सुनो, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओवर हियर यू नो, मेरे को 1-2 जन ऐसे हैं जो आज फर्स्ट डे आए हैं. ये कुछ प्रमोशन नहीं है, ये वो है कि ये हमारी समरी बुक है जिसके स्क्रीनशॉट्स आपको दिखते हैं, और ये वो प्रैक्टिस मैनुअल जहाँ से हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं अभी आजकल. बिकॉज देयर आर पीपल हु कीप आस्किंग अस कि अगर खरीदना है तो क्या करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्राइस डाल दिया. बाकी कॉल करने का 7710050383 पे और कर लेने का बुक. अदर देन दैट, ऑल दैट आई एम टेलिंग यू इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द चैप्टर्स, कोई ना कोई चैप्टर पक्का होगा जो तुमने छोड़ दिया था. कोई ना कोई चैप्टर का कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर होगा जो तुमने छोड़ दिया था, बिकॉज यू डिडंट हैव टाइम टू स्टडी, और मे बी यू वर बोर्ड और समथिंग. प्लीज़ पुट इन टाइम एंड स्टडी दोज पार्ट्स. यू नेवर नो व्हाट कुड टर्न आउट इन योर एग्जाम. ठीक है, टुडेज सेशन हैज़ बीन फैंटास्टिक फॉर ऑल ऑफ यू. या यू आर ऑल वेरी हैप्पी. तुमको आज बोलना ही नहीं पड़ रहा स्माइल स्माइल स्माइल. यू आर ऑलरेडी स्माइलिंग. कोई कैमरा भी बंद नहीं कर रहा था आज. यू नो नॉर्मली व्हाट पीपल डू, मैं तुमको बताया ना, हर सेशन में क्या करते, जो आंसर नहीं आता ना कैमरा बंद, आंसर नहीं आता कैमरा बंद, आंसर नहीं आता कैमरा. आज तो भाई, आज तो यूनिटी स्ट्रेंथ चल रहा है, आज कोई कैमरा भी बंद नहीं कर रहा है. आज पब्लिक लाइक, आज तुम पूछो, आप खाली पूछो, आज देखो हम कैसे आंसर देते हैं. वेरी गुड. आई वांट द सेम थिंग टू कंटिन्यू इन द रिमेनिंग 4 सेशंस ऑल्सो, सो दैट by the end of these sessions you will be really very confident with your whole law का syllabus also and MCQs also. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर, आई एम अगेन टेलिंग यू. RTP का जो वीडियो है यूट्यूब पे, उसको प्लीज़ देखना. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ केस सिनेरियो बेस्ड MCQ कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, वो इसलिए क्योंकि उसमें 2 केस सिनेरियोज हैं.
That will probably help you to understand that also, because here I'm just doing independent MCQs. केस सिनारियो वाले करने का टाइम नहीं है फिलहाल, सो उसका भी एक प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगा. इज दिस ओके? ओके या पार्थ? हाँ पार्थ बोलो. थोड़ा सा ही डाउट था ना. ईच आपने 10,000 ईच गिना कि 10,000 टोटल गिना? नहीं, बट वहाँ पे लिखा है ना, इन दिस बोथ AB एंड AC हेल्ड 10,000 शेयर्स इन A लिमिटेड. तो अच्छा आप बोल रहे हो अगर मैंने इंडिविजुअली 10-10 हज़ार गिना हो तो भी आंसर तो सेम ही आएगा. हाँ नहीं, दैट इज़ पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज वो जिस तरह की लैंग्वेज है यू कैन कंसिडर दोनों के 10-10 हज़ार है, तो भी आंसर सेम आएगा. ठीक है. बाकी किसी को किसी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है? नहीं, आज के क्वेश्चंस में तो कहाँ से डाउट लोगे ना, पुराने क्वेश्चंस में तो मज़ा आ रहा था. सो द नेक्स्ट सेशन आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन. वी आर गोइंग टू, आई थिंक वी हैव 2 चैप्टर्स राइट, फॉरेन कंपनीज एंड NCLT इन द नेक्स्ट सेशन एज फार एज आई नो. इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, नो वरीज, तुम्हारे पास शेड्यूल है, तुम शेड्यूल देख के ही पढ़ के आना. ये मत बोला मैम आपने रॉन्ग बोला तो हमने रॉन्ग पढ़ा, अभी हम सब रॉन्ग. ठीक है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन प्लीज कीप स्टडिंग, and I hope all our sessions ahead go like this, that you end it with such a smile and the confidence. The idea, the whole ideology of doing this is this currently what you're having. ठीक है. The idea is not to scare you and make you feel frightened कि बाप रे मैंने पढ़ा पर मेरे को कुछ आता नहीं है. The idea is this. ठीक है. बट हर बार क्वेश्चन ईजी नहीं होंगे. इट्स जस्ट दैट योर प्रिपरेशन हैज टू गेट टफर एंड टफर, कि क्वेश्चन कैसा भी हो मेरे को ईजी लगने वाला है. यस, I'll see you in the next session. Till then, I become so happy to see all of you. तुमको देख के मज़ा आ जाता है. So I'll see you in the next session. Till then, पढ़ते रहना, and I'll see you on Friday now, right? Okay, and all please stay safe, stay at home. बहुत important. That's the most important thing. ठीक है. बाकी पढ़ाई करो, मस्त रहो. See you. Bye bye. Bye. Bye.